Today, today we are going to start with determinants, chapter number 21 सर। ये चैप्टर मैट्रिक्स के ऊपर ही है जो चैप्टर नंबर 20 में था। Every square matrix is associated with a unique number called the determinant. Determinant जो मैट्रिक्स के सब में एलिमेंट्स है उसमें जो स्पेसिफिक नंबर होता है उसका डिटरमिनेंट होते हैं। In this lesson, we will learn various properties of determinants and also evaluate determinants by different method. ये चैप्टर में हम लोग डिटरमिनेंट कैसे फाइंड कर सकते हैं डिफरेंट मेथड से। ओके, फर्स्ट 21.1 determinant of order 2. Let us consider the following system of linear equation. You all know the linear equation is x plus y is equal to 0. Okay, x plus y is equal to 0 linear equation है जिसके जो मैट्रिक्स के साथ इसको कोऑर्डिनेट किया गया है। ओके, तो a1x plus b1y is equal to c1, a2x plus b2y is equal to c2. Okay, on solving this system of equation for x and y, we got x is equal to b2, x is equal to b2 c1 minus b1 c2 upon a1 b2 minus a2 b1. Okay, and y is equal to a1 c2 minus a2 c1 a1 b2 minus a2 b1, provided a1 b1 minus a2 b1 is not equal to 0. The number a1 b2 minus a2 b1 determines whether the values of x and y exist or not. According to this we can find value of x and y. हम लोग ये जो इक्वेशन है उसके हिसाब से हम लोग x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके, और वो मिलती है या नहीं मिलती वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। The number a1 b2 minus a2 b2 a2 b1 is called the value of determinant, and we write a1 a2 b1 b2 is equal to a1 b2 minus a2 b1, a1 b2 minus a2 b1. Okay, a1 1 belongs to the first row and first column, a12 belongs to the first row and second column, a21 belongs to the second row and first column, a22 belongs to the second row and second column. Okay, now extension of a determinant of order 2. A formal rule for the expansion of a determinant of order 2 may be stated as follow. जो ये फॉर्मल रूल है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के लिए डिटरमिनेंट फाइंड करने का, अगर 2 क्रॉस 2 में एग्जांपल ये है a1 1 a1 2 a2 1 a2 2, then write the elements in the following manners. Write the elements in the following manner: a1 1 a1 2 a2 1 and a2 2. Multiply the element by the arrow. The sign of the arrow going downwards मतलब जो ये नीचे जा रही है वो, ओके, is positive. ओके, ये जो है वो पॉजिटिव है, प्लस, and so that a11 and a2 and the sign of the arrow going upwards and sign of the arrow going upwards मतलब जो ये है a21 a12, ओके, is negative. ये जो है ये नेगेटिव है और ये जो है ये पॉजिटिव. ओके, so that minus a21 a12. Add these two products so that a11 a22 plus minus a21 a12, जो ये है a11 a22 and a21 and a12, or a11 a2 minus a21 a11, which is the required value of the determinant, जिससे हम
डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हैं। तो एज अ एग्जांपल प्लस माइनस, ओके, तो 6 2 जा 12 माइनस 8 4 जा 32 is equal to minus 20. So the determinant of matrix I is minus 20. Next, a plus b, 2b, 2a, a plus b. Same procedure. Multiply plus and minus. A plus b, a plus b, a plus b, a plus b minus 2a, 2b. A plus b, a square, 2ab. A square, ab, ba, b square. और ba जो ba और ab है उसका एडिशन मतलब 2ab, या फिर a square 2ab b square minus 2 2 जा 4 ab is equal to a square plus b square minus 4ab and plus 2ab, which means minus 2ab. This is the basic equation of a minus b whole square. So the answer is a minus b whole square, जो डिटरमिनेंट है मैट्रिक्स 2 का, a plus b 2b 2a a plus b का मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। ओके, नेक्स्ट x square plus x plus 1 and x plus 1, x square minus x plus 1 and x minus 1. ओके, x square plus x plus 1, x square minus x plus 1, x plus 1 है x minus 1. ओके, x square plus x जो सेम प्रोसीजर है वही, ये और ये जो है वो प्लस, ये है माइनस। तो x square plus x plus 1 into x minus 1 minus x square minus x plus 1 into x plus 1, then x cube minus 1 and x cube plus 1 is equal to 2. ये बेसिक इक्वेशन है x cube plus 1 का। ओके, इस a cube plus b cube का, जो जिसमें a है वो x minus 1 है और जो b है वो 1 है। ओके, is equal to minus 2. So the determinant of x square plus x plus 1 x plus 1 x square minus x plus 1 x minus 1 का वो है minus 2. Next, find the value of x if x minus 3x x plus 1 x plus 3 is equal to 6. ओके, ये जो 6 है वो है डिटरमिनेंट, और जो डिटरमिनेंट का इक्वेशन है वो क्या है, x minus 3 into x plus 3 and x minus x plus 1 into x, उसके बीच में जो आएगा वो है ये है प्लस और ये है माइनस। तो ये है ये जो x minus 3 plus 3 minus x into x plus 1, x square minus 9 minus x square minus x is equal to minus x minus 9. According to the equation minus x minus 9, जो उसका जो आंसर है मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वो क्या है 6, तो इज इक्वल टू 6 हुआ, और माइनस x minus 9 ये जो माइनस 9 है वो इधर जाएगा तो प्लस 9, तो 9 और 6 15, जो माइनस है और ये प्लस है, हमें चाहिए प्लस में आंसर पॉजिटिव में, तो माइनस x का जो ये माइनस हो वो सामने चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू माइनस 15. ओके, देन 2x minus 1 2x plus 1 x plus 1 4x plus 2. ओके, उसका जो डिटरमिनेंट है वो क्या है 0, और जो डिटरमिनेंट की जो इक्वेशन है वो क्या है मल्टीप्लाई these two products minus multiply these products. Okay, 2x minus 1 2x plus 1 x plus 1 4x plus 2. तो यहाँ पे ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा माइनस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, ये और ये। ओके, सॉल्विंग दिस इक्वेशन 8x square plus 4x minus 4x minus
2 माइनस 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 2x माइनस 1। ये जो सॉल्विंग करना है ये इक्वेशन का, तो ये प्रोडक्ट ये एलिमेंट 2x वो मल्टीप्लाई होगा सामने वाले दोनों के साथ, बराबर। बीच में क्या आएगा, एडिशन। और ये जो होगा उसका ये दोनों के साथ होगा, ये इसका ये दोनों के साथ होगा, इसका ये दोनों के साथ होगा। जो हमको जो मिलेगा प्रोडक्ट वो ये है। देन 2 प्लस ये सॉरी 8 प्लस माइनस 2 मतलब 6x स्क्वायर, 4x प्लस माइनस मतलब ये 0 और माइनस माइनस प्लस माइनस 3x एंड माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 3 कॉमन मतलब 3 इज इक्वल टू सॉरी 3 कॉमन, यहाँ से 3 निकलेगा तो 3 2 6 मतलब 2x स्क्वायर, 3 निकलेगा तो मतलब 1x, 3 निकलेगा तो मतलब 1। सो द आंसर वी हैव according to the equation 3 into 2x square minus x minus 1 is equal to 0। जो हमें इसके जो इक्वेशन है उसमें दिया है पहले से। देन ये जो 3 मल्टीप्लाई में है सामने जाएंगे तो डिवाइड में 0 डिवाइडेड बाय 3 0, 2x स्क्वायर minus x minus 1 is equal to 0। देन 2x स्क्वायर यहाँ पे जो 2 into 1 2 और जो बीच में जो x है सॉरी x के ऐसे कौन से दो पार्ट है जिसमें जैसे कि 2x प्लस x मतलब माइनस 2x प्लस x इज इक्वल टू x ही हुआ, मतलब ऐसे दो कौन से पार्ट है जो इससे हम अलग कर सकते हैं इसको। ओके तो 2x x minus 1 plus 1 x minus 1 is equal to 0। ओके देन 2x plus 1 and x minus 1 में x minus 1 मतलब 2x plus 1 into x minus 1 is equal to 0। ओके देन x 2x plus 1 is equal to 0 according to the यहाँ पे जो डॉट है। ओके मतलब जो मल्टीप्लिकेशन है वो जो मल्टीप्लिकेशन है 2x plus 1 और x minus 1 is equal to 0। यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन का डॉट है मतलब 2x plus 1 is equal to 0 है और x minus 1 is equal to भी 0 है। ओके यहाँ पे दो वैल्यू ऑफ x मिलेगी हमें, जो 2x plus 1 2x plus 1 is equal to 0 मतलब ये जो प्लस है 1 वो वहाँ पे जाएगा तो माइनस 1 मतलब x is equal to माइनस 1 एंड जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है 2 वो साइड में जाएगा तो डिवाइडेड बाय 2 मतलब तो फर्स्ट x is minus 1 by 2 other x minus 1 is equal to 0, x minus 1 is equal to 0, ये माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस 1 मतलब x is equal to plus 1। तो यहाँ पे x मिलेंगे वो एक है माइनस 1 by 2 एंड दूसरा है 1। नेक्स्ट डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। ऑर्डर 3 मतलब पता है ना 3 क्रॉस 3 नंबर ऑफ रो 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम इज 3। द एक्सप्रेशन a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 contain 9 quantities a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 and c3 arranged in 3 rows and 3 columns। जो मैंने बोला अभी वही number of column is 3 and the number of row is 3 is also called determinant of order 3 or determinant of third order। A determinant of order 3 has 3 raised to 2 is equal to 9 elements। Okay, using double subscript notation wise a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 for the elements। Okay, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 we write determinant of order 3 as follows। a11 a12 1 मतलब
यहाँ पे जो 1 है, ये जो 1 है वो 1 ए रो एंड कॉलम, ओके। ए रो एंड कॉलम मतलब फर्स्ट रो एंड कॉलम 1, फर्स्ट रो एंड कॉलम 2, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, ओके। नेक्स्ट A21 second row first column, second row second column, second row third column, third row first column, third row second column, third row third column, okay. Usually a determinant whether of order 2 or 3 is denoted by delta or mod A mod B, डेल्टा mod A और mod B एक्सेट्रा। अगर हमारे पास तीसरा मैट्रिक्स हो तो सी मैट्रिक्स हो तो उसको सी mod C बोलते हैं, अगर आई मैट्रिक्स हो तो उसको mod I बोलते हैं, ओके। तो डेल्टा इज इक्वल टू aij mod aij, वेयर I इज इक्वल टू 1 2 3 एंड j इज इक्वल टू 1 2 3, मतलब वो सिर्फ ऑर्डर 2 और 3 के लिए ही ये इक्वेशन है, ओके। नेक्स्ट, determinant of a square matrix, whether with each square matrix of number we associate a determinant of a matrix with the 1 cross 1 matrix, मतलब 1 cross 1 matrix मतलब column 1 और row 1, number of column is 1 and number of row is 1, we associate the determinant of order 1 and with the only element a, the value of determinant is a. If a is equal to a मतलब मैट्रिक्स A is equal to a11 a12 a21 a22 be a square matrix of order 2 मतलब number of row is 2 and number of column is 2, then the expression a11 a22 minus a21 a12 is defined as the determinant of order 2, it is denoted by mod A। जो डिटरमिनेंट फाइंड करना है, जो हम आगे सीख चुके हैं, वो है a11 मल्टीप्लाई माइनस a21 and a12, okay. So the mod A is equal to a11 a12 a21 a22 is equal to a11 a22 minus a21 a12. Next, with the 3 cross 3 matrix a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, we associate the determinant a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 and its value is defined to be a11 cross यहाँ पे एक a3 cross 3 का जो डिटरमिनेंट है वो सिर्फ यहाँ पे जो साइन है वो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, ओके। ये ऊपर नहीं है माइनस प्लस, ये उसके बाजू में है, ओके। तो यहाँ पे ये लोग ये जो फर्स्ट रो है उसके हिसाब से डिटरमिनेंट फाइंड कर रहे हैं। हम लोग कोई भी हिसाब से डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, इससे सब रो और सब कॉलम से हम उसको ये 3 क्रॉस 3 में ऑर्डर का मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हैं। इन लोगों ने यहाँ पे a11 a12 a13 को प्रेडिक्ट किया है, ओके। a11 क्रॉस मतलब यहाँ पे जो a11 है उसको छुपा देना है, उसके अलावा जो ये रो और कॉलम दोनों को छुपा देना है, ओके। तो उसके अलावा जो बचे वो क्या है, a12 a23 a32 और a33। जैसे हम 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं, वैसे ही हमें a22 a23 a32 a33 का डिटरमिनेंट फाइंड करना है, जैसे मल्टीप्लाई माइनस मल्टीप्लाई, ओके। डन। ओके, हमें इसको बड़े पेज में खुद करना होगा जिससे आप आसानी से फाइंड कर सकते हो। a11 a12 a13
यहाँ पे जो ये है वो है मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। ओके, हमें इसका डिटरमिनेंट मतलब ये ए है, उसका डिटरमिनेंट मतलब मॉड ए फाइंड करना है। जो आगे मैंने बता दिया, जो साइन है वो ये यहाँ पे प्लस माइनस, जो प्लस के बाद आएगा वो है माइनस, माइनस के बाद आएगा वो है प्लस, यहाँ पे माइनस के बाद आएगा प्लस और प्लस के बाद आएगा माइनस, प्लस के बाद आएगा माइनस और माइनस के बाद आएगा प्लस। ओके, तो ये जो है A11 उसको हमें छुपा देना है और जो बचे ये 4 उसका हमें डिटरमिनेंट फाइंड करना है बाय ऑर्डर 2x2 जो हम आगे पढ़ चुके हैं। ओके, तो A11 मल्टीप्लाई A22 इंटू A33 माइनस, और यहाँ पे माइनस A32 A23 ओके, और ये हम जो बुक पे दिया है वो है ये रो का हमें डिटरमिनेंट फाइंड करना है जिसमें प्लस उसके बाद माइनस, देन यहाँ पे जो प्लस है अब उसके बाद आएगा माइनस A12 और हमें ये A12 छुपा देना है। अब जो रिमेन है वो क्या है, A12 को छुपा देने के बाद जो रिमेन है वो क्या है, ये रो और ये कॉलम वो है छिप जाएगा। ओके, ये रो और ये कॉलम जो है वो छिप जाएगा, तो उसके बाद क्या होगा, ये रो और ये कॉलम ये कॉलम और ये रो छिप जाएगा, बराबर। तो उसके बाद जो रिमेन है वो है A21 A23 A31 A33। ओके, तो हमें उसका ये जो 4 है हमें उसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है, जो ऑर्डर 2x2 का डिटरमिनेंट जो होता है वो मतलब A21 इंटू A33 प्लस माइनस A31 A23। ओके, नेक्स्ट जो इसकी साइन है वो क्या है, यहाँ पे जो माइनस है अब आगे कौन सी है, प्लस माइनस प्लस, मतलब यहाँ पे जो होगा वो है प्लस, यहाँ पे जो है वो है प्लस और प्लस के आगे क्या है A13, देन A13, तो यहाँ पे कौन सा रो और कॉलम छुप जाएगा, यहाँ पे जो रो A13 है मतलब ये रो और ये कॉलम, तो रिमेन कौन सा है, ये 4 रिमेन है, तो A21 इंटू A32 माइनस A31 इंटू A22। ओके, ये जो है वो फॉर्मूला है, अगर हमें ये रो के लिए फाइंड करना है, ये रो के लिए जो हमें फाइंड करना है तो इसकी ये फॉर्मूला है। वैसे ही हम ये रो के लिए भी फाइंड कर ये कॉलम के लिए, ये कॉलम के लिए और ये कॉलम के लिए भी हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ओके। सॉरी, ठीक है, जो हमने बोला था वो यहाँ पे आ गया, बराबर। अब नेक्स्ट, इफ a is equal to 3 6 1 5 find mod a। mod a मतलब डिटरमिनेंट मतलब mod a is equal to ये दो का मल्टीप्लिकेशन माइनस ये दो का मल्टीप्लिकेशन। ओके, 3 5 6 1, 3 into 5 minus 1 into 6 is equal to 15 minus 6 is equal to 9। if a is equal to a plus b, a minus b, find mod a। mod a मतलब डिटरमिनेंट ऑफ a, determinant of a is equal mod a is equal to a plus b, a minus b। okay, a plus b, a minus b minus b cross a is equal to यहाँ पे ये दो का मल्टीप्लिकेशन होगा माइनस ये दो का मल्टीप्लिकेशन। ओके, a plus b, a minus b minus b cross a is equal to a square minus b square is equal to ab। जो हमने आगे किया वो ये a
ये भी ये और ये भी स्क्वायर माइनस बी क्रॉस ए, ओके, बी क्रॉस ए मतलब बी ए, सो द आंसर इज a square minus b square minus ab, ओके। नेक्स्ट 21.5 expansion of a determinant of order 3 in section 4.4 we have written, जो हमने दूसरे पेज में जाके किया था वो ही लिखा है, ओके। जो a11 2 प्लस माइनस प्लस, ओके, प्लस माइनस प्लस, ओके। अगर a11 है तो ये और ये जो आएगा वो ये इसमें से होगा। अगर a22 है a12 है तो ये और ये होगा, इसमें a21 a23 a31 a33 a21 a22 31 33, ओके। which can be further expanded as, इसको आगे ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे इसका मल्टीप्लाई कर देने का है अंदर a11 a1 a22 a33, ओके। We notice that in the above method of expansion, each element of first row is multiplied by the second order determinant obtained by deleting the row and column in which the element lies. जो हम लोग यहाँ पे जो डिलीट कर देते हैं, the example is a12, अगर हमें a12 फाइंड करना है तो हम ये रो सॉरी ये कॉलम और ये रो हम डिलीट कर दें, उसके अलावा जो बचता है उसका हम डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं, जिससे हमें वैल्यू मिलती है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स है उसका, ओके। Further mark that the element a11, a12 and a13 have been assigned positive, negative and positive sign respectively. In other words, they are assigned positive and negative sign alternatively, starting with positive sign if the sum of the subscripts of the element is an even number. When assigned positive sign, if it is an odd number, then we assign negative sign. Therefore, a11 has been assigned positive sign, okay। जो हमने पहले ही कर लिया वो है, जो मैंने आगे बोला वो प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ओके। इतना लंबा कुछ लोगों ने जो लिख के दिया है वो सिर्फ यही था, ओके। एक्सपांड द डिटरमिनेंट यूजिंग द फर्स्ट रो। फर्स्ट रो मतलब ये, उसको यूज करके डिटरमिनेंट फाइंड करना है हमें। ओके, फर्स्ट रो का डिटरमिनेंट हमें फाइंड करना है, वो है डेल्टा इज इक्वल टू 1 2 3 2 4 1 3 2 5 इज इक्वल टू, अगर फर्स्ट रो है तो हमें क्या करना है, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस मतलब एक के आगे प्लस, 2 के आगे माइनस, 3 के आगे प्लस। अगर हम एक है 1 हमें यहाँ पे फाइंड करना है तो ये जो है वो है जो डिलीट हो जाएगा, और इसका जो हमें वो है डिटरमिनेंट फाइंड करना है, वो है 4 क्रॉस 5 माइनस 2 क्रॉस 1, ओके। माइनस 2 इंटू अगर यहाँ पे 2 है, 2 की बारी है तो ये और ये हो जाएगा, और 2 5 1 3 प्लस 3, ओके। अगर 3 की बारी है तो ये और ये 2 4 3 2, ओके। देन उसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है, ओके। जो 20 minus 2 into 10 minus 3 plus 3 4 minus 12, okay, 18 minus 14 minus 24, so the answer is minus 20. Next, example 21.6, expand the determinant by using the second column 1 2 3 3 1 2 2 3 1। second column मतलब second column उसके हिसाब से हमें डिटरमिनेंट फाइंड करना है।
first we have to put some not all the time we write like plus minus plus minus plus plus minus plus minus plus ऑलवेज हमें ये सिर्फ अपने मन में ही करना है। नेक्स्ट जब हमें अच्छे से आ जाए तब तक अगर नहीं आता है तो हम पेंसिल से यहाँ पे प्लस माइनस करेंगे। ओके नेक्स्ट सॉरी डेल्टा इज इक्वल टू 1 2 3 3 1 2 2 3 1 इज इक्वल टू हमें सेकंड कॉलम को यूज करना है। सेकंड कॉलम को यूज करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल प्लस माइनस प्लस मतलब ये माइनस माइनस के बाद क्या आएगा प्लस प्लस के बाद क्या आएगा माइनस क्योंकि माइनस 2 अगर ये हो 2 है तो ये और ये दोनों छुप डिलीट हो जाएगी तो जो रिमेन है वो 3 2 2 1 3 2 2 1। ओके नेक्स्ट क्या है 3 है सॉरी 1 है कॉलम यूज करना है तो जो है 1 तो ये और ये दोनों डिलीट हो जाएगा तो रिमेन 1 1 3 2 1 1 3 2। ओके नेक्स्ट जो है वो है 3 तो ये और ये 1 2 3 3 1 2 3 3। ओके डिटरमिनेंट फाइंड करना का तो अब आ ही गया होगा जैसे कि 3 1 3 minus 2 2 4 3 1 3 minus 2 2 4 1 1 1 minus 3 2 6 1 1 1 minus 3 2 6 1 2 2 minus 3 3 9। okay 2 minus 5 plus 21 so the answer is 18। next check your progress। ये जो है ये फिर ये जो है वो है important sums जो एग्जाम में आते ही है एग्जाम में 100% आते हैं। ओके ऐसे सम्स 100% आते ही है एग्जाम में। माइनस एंड कोफैक्टर्स। ओके माइनस एंड कोफैक्टर्स minus of aij in mod a mod determinant a to each element of determinant a number called its minor is associated। okay जो एलिमेंट का जो ऐसा एग्जांपल जो एलिमेंट में जो है उसका माइनर होता है। ठीक है of elements is value the minor of an elements is the value of the determinant obtained by deleting the rows and column containing the elements। okay the माइनर्स मतलब जो हम डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए अगर ये जो रो है उसका भी हम यूज करते हैं डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए तो हमने यहाँ पे फर्स्ट जो 2 सिलेक्ट किया जो प्लस है 2 सिलेक्ट किया जो प्लस है अगर हम डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए ये और ये डिलीट करते हैं बराबर तो उसके बाद जो रिमेन है उसके जो डिटरमिनेंट है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का ये जो ऑर्डर है वो 2 क्रॉस 2 का है अगर हम उसको यूज करें लाइक -3 1 into -1 तो माइनस प्लस 3 -2 0 0 मतलब 3 तो जो ये 2 है मतलब ये 1 1 पोजीशन पे जो ये 2 है उसका माइनर क्या हुआ 3। ओके तो ऐसे ही यहाँ पे बताया है कि the minor of an element is the value of determinant obtained by deleting the rows and the column containing the element। जो एलिमेंट का जो रोज है और कॉलम जो हम लोग डिलीट करते हैं मतलब ये तो इसके हिसाब से हम ये कॉलम और ये रो हम डिलीट करते हैं तो अगर 2 है तो उसका ये इसमें से जो डिटरमिनेंट हम करते हैं फाइंड तो उसका आंसर तो 2 का माइनर क्या हुआ जो उसका आंसर आया वो और 0 यहाँ पे b का डिटरमिनेंट हमें फाइंड करना है एज एग्जांपल तो हम ये कॉलम और ये रो हम डिलीट करते हैं तो b और c और e से जो हमें मिलेगा आंसर तो वो b का माइनर है। ठीक है ऐसे हम b2 सब पोजीशन का माइनर फाइंड करना होता है सब एलिमेंट के सब पोजीशन का माइनर फाइंड करना होता है। नेक्स्ट example 21.7 find the minors of the elements of the determinant
A is equal to A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. ऐसा सिंपल बेसिक एग्जांपल माइनर 11 मतलब इसका जो माइनर है वो है M11 मतलब A22, A33, A23, A32 ओके जो आया वो इसका माइनर है. Similarly the minor M12 of A2 is given by M12 मतलब one row row 1 and column 2 row 1 and column 2 मतलब row 1 and column 2 मतलब ये ठीक है. तो उसका माइनर क्या आएगा अगर ये रो 1 और 2 का जो है तो इसमें से जो ये है वो ये कॉलम डिलीट हो जाएगा और ये रो डिलीट हो जाएगा. तो उसका माइनर आएगा A21 माइनस A21 into A33 माइनस A31 into A23 A21 A33 minus A23 A31 okay. And so therefore M12 M13 M21 M22 M23 are given below. (21.6.2) cofactors of Aij in determinant A. Cofactor of an elements Aij in a determinant is the minor of Aij multiplied minus 1 raised to I plus j. It is usually denoted by Cij. Thus, cofactor of Aij is equal to Cij is equal to minus 1 raised to I plus j into Mij. Mij मतलब जो माइनर है वो ये उसका जो है वो है ये उसका इक्वेशन है ओके.